again another topic that is also called as a basic topic where we will focus on different types of voltage sources, current sources, what is the ideal voltage source, what is the ideal current source, or what is a practical voltage source, practical current source, source transformation, and the most important, what will happen if voltage sources are in series parallel like current sources are in series parallel. So this is another part of the BEE basic, and that is required to understand before we start the theorem. So welcome back again, and we'll start with a voltage source. So first important point, what is a voltage source? We normally observe the battery source, power supply. These are some example of DC voltage source, and in AC we use 230 volt, 440 volt supply voltage. So symbolically, if you draw, then in simple word, what is a voltage source basically? What is the definition of voltage? That is an important concept here. What is a voltage basically? So most of the time we observe that voltage source means amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point, and that is generally called as a voltage source. So symbolically, voltage source is highlighted by plus minus, and another possible way that you can highlight the voltage source, that is plus minus the battery. So this is a two possible symbol we use for voltage source. So first we see the definition, amount of work done. For example, अगर voltage source को याद रखना है तो lightning stroke को याद रखो. Lightning stroke में क्या होता है? Amount of work done from infinity to your required point. वो जो lightning stroke होता है तो वो कहाँ से आता है? It comes from infinity up to your point. तो lightning stroke का example is the best example to understand the voltage source basically, but it is a big one. So what we do generally, the amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point is called as voltage source. Symbolically, voltage source is highlighted by two possible way, plus minus voltage, that is V, or plus minus, that is E. So this is a simple definition of voltage source that you already studied in 11th and 12th. But what is about voltage source basically get classified into two parts. First part is called as ideal voltage source. First part is called as ideal, and another one is known as practical voltage source. So we have to now discuss about what is the ideal voltage source. Most of the time student get confused what is the ideal, what is the practical. तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है. सपोज आपने मार्केट से एक बैटरी लेके आए, उसका वोल्टेज था 10 वोल्ट. एग्जांपल की तरफ ध्यान दे दो. बैटरी से मार्केट से एक बैटरी लेके आए, उस बैटरी का पोटेंशियल था 10 वोल्ट, और इस बैटरी को अगर मैंने कनेक्ट किया कोई भी एक एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आप समझो मोबाइल चार्जर. ये मेरा मोबाइल चार्जर एप्लीकेशन है और इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम. अभी मैं कैलकुलेशन करना चाहूंगा कि ये बैटरी कितना करंट डिलीवर करेगी. इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है तो बट ऑब्वियस 10 डिवाइडेड बाय 1, यहां से करंट जाएगा 10 एम्पियर. जब करंट 10 एम्पियर जाएगा तो इस एप्लीकेशन के अक्रॉस 10 into 1 कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 10 वोल्ट. इसका मतलब मेरा बैटरी का पोटेंशियल क्या था? 10 वोल्ट. और मेरा लोड जो कनेक्ट किया बैटरी के ऊपर, उसके ऊपर भी वोल्टेज कितना आ गया? 10 वोल्ट. मतलब पूरा का पूरा 10 वोल्ट आ गया मेरे एप्लीकेशन के अक्रॉस. यही होती है आइडियल वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट. अगर आप मार्केट से 10 वोल्ट की बैटरी लेके आए तो व्हाट इज यू एक्सपेक्ट कि 10 का 10 मेरे लोड के अक्रॉस होना चाहिए. और एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम घर से टिफिन लेके जाते हैं या मम्मी आपको टिफिन देती है तो व्हाट मम्मी एक्सपेक्ट, 2 चपाती डाल देती है. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ मम्मी कि वो 2 के 2 चपाती पूरे आप खाएं. दैट इज द आइडियल एक्सपेक्टेशन, एंड सेम हियर. दैट्स व्हाई इफ यू डिफाइन द आइडियल वोल्टेज सोर्स, एनी वोल्टेज सोर्स इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स इफ इट डिलीवर कांस्टेंट वोल्टेज. ये मेरा वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ है. तो इफ इट डिलीवर कांस्टेंट वोल्टेज, और ये कांस्टेंट वोल्टेज कब डिलीवर कर पाएगा? जब बैटरी को खुद का रेजिस्टेंस कुछ नहीं होना चाहिए. मतलब बैटरी खुद के लिए कुछ नहीं रखेगी, पूरा का पूरा डिलीवर करेगी. एंड दैट्स व्हाई एनी वोल्टेज सोर्स इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स व्हेन इट कंसिस्ट जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस. इट कंसिस्ट जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब जो स्टार्टिंग में हमने सिंबल निकाला था, दिस इज अ सिंबल फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा. और जब इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो बट ऑब्वियस है उसका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ बैटरी सोर्स. बट आपको लगता है कि कोई बैटरी आइडियल होगी? अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता. अपने मोबाइल को चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, एक बार बैटरी डाल दिया, जिंदगी भर भी मोबाइल चलेगा, या लैपटॉप और एनी एप्लीकेशन. तो कोई भी बैटरी सोर्स लाइफ में आइडियल नहीं होती है. इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि ये आइडियल. तो once again I repeat, what is the ideal voltage source? Any voltage source is known as ideal voltage source when it consists zero internal resistance. और जब जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो टर्मिनल वोल्टेज हमेशा आपके अप्लायंसेस के अक्रॉस कांस्टेंट रखेगा. दिस इज द आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ
एनी वोल्टेज सोर्स, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो हमें अभी देखना है कि प्रैक्टिकल में क्या होता है। दैट्स व्हाई इफ यू थिंक अबाउट नाउ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अभी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जब हम बैटरी बनाते हैं, थोड़ा सोचो हम बैटरी कैसे बनाते हैं। बैटरी बनाने के लिए भी टेक वन पॉट, उसके अंदर थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस डाल देते हैं, एक जगह एक एनोड रहता है, एक जगह एक कैथोड रहता है, और जब एनोड कैथोड का केमिकल लोचा कुछ तो होता है आपके केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो ऑटोमेटिकली बन जाती है बैटरी। इसका मतलब बैटरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉट लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल डाल देते हैं, यहाँ एक एनोड, यहाँ एक कैथोड रख देते हैं, यहाँ हो जाता है प्लस प्लस, यहाँ हो जाता है माइनस माइनस। मतलब बैटरी बनाने के लिए जनरली वी यूज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोड एंड एवरीथिंग। तो हर बैटरी के जब बनाते तो उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ ही जाता है। इसलिए जब आप बैटरी बनाते तो बैटरी को एक रेजिस्टेंस आता है, और वो रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो ये बन जाता है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। बिफोर वी कम अक्रॉस द सिंबल, हम एक चेक करते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो आता है उसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो प्रीवियस एग्जांपल की तरफ चलते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने बैटरी लिया था 10 वोल्ट का, लेकिन अभी मेरा सिचुएशन बदल गया कि इस बैटरी को एक इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने डाल दिया 1 ओम, और फिर से ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। मतलब ये मेरा बैटरी चार्जर या ये मेरा एप्लीकेशन है। अभी बताओ इसमें क्या कंडीशन चेंज आ गई, बैटरी को एक रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। तो इस केस में बैटरी में से करंट कितना पास हो जाएगा, 2 एम्पियर, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, सॉरी, करंट पास होगा 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज नथिंग बट 5। करंट पास होगा 5 एम्पियर। तो जब करंट पास होगा 5 एम्पियर, 10 डिवाइडेड बाय 2 इट इज अ 5। 5 इंटू 1 जब मैं करने जाऊंगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया 5 वोल्ट। इसका मतलब बैटरी का पोटेंशियल क्या था, 10 वोल्ट, लेकिन मेरा लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 5 वोल्ट, और बचा हुआ 5 वोल्ट किसने खा लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ने। इसका मतलब मेरी बैटरी मुझे पूरा का पूरा वोल्टेज नहीं दे रही है। सेम एग्जांपल, घर से मम्मी ने टिफिन ले दिया, आपको 2 चपाती दिया और आपको खा के पूरा का पूरा खाना है, लेकिन अगर गलती से आपके एक दोस्त ने टिफिन नहीं लाया, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, आपका जो 2 चपाती वो डिवाइड हो जाएगा। दोस्त एक चपाती खाएगा, आप एक चपाती खाएंगे, मतलब पूरा का पूरा टिफिन आपने नहीं खाया। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर गलती से और एक एग्जांपल ले लूं मैं, और इस एग्जांपल में बैटरी का रेजिस्टेंस अगर मैंने 10 बना दिया और बैटरी का वोल्टेज सेम ही है, और फिर से ये बैटरी अगर मैंने कनेक्ट की सेम लोड एप्लीकेशन के अक्रॉस, अभी क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 11, मतलब रफली 0.1 के आसपास कुछ तो करंट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज सिर्फ 0.1 वोल्ट होगा। व्हाई, बिकॉज ये 1 ओम है और करंट 0.1 जाएगा, तो आई एम डूइंग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, तो 0.1 और बचा हुआ 9.99 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब अगर चपाती आप लेके गए 2 चपाती और आपके सारे दोस्तों ने 10-12 दोस्त हैं उन्होंने टिफिन नहीं लाया, तो व्हाट विल हैपन, आपको एक चपाती का टुकड़ा मिल जाएगा। ऐसे करते करते अगर ये रेजिस्टेंस को, ऐसे करते करते इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 100 करोगे, तो ये ऑब्जर्व करोगे कि ये बैटरी पूरा का पूरा वोल्टेज खुद खा रही है और बैटरी आउटपुट कुछ नहीं दे रही। तब आप जाके बोलते कि बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी अभी कोई काम की नहीं, हम उसको उठाते और नई बैटरी रिप्लेस करते। तो बैटरी का डैमेज होना या बैटरी काम नहीं करना मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि जो भी वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस है वो बैटरी पूरा का पूरा खुद खा लेती है। एंड दैट इज द कंसेप्ट अबाउट आइडियल। इसलिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जब हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल क्या होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं इसे आरआई कहूंगा, ये होना चाहिए, एंड दैट शुड बी मिनिमम, जितना कम हो। आइडियली कितना होना चाहिए, 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या होना चाहिए, 0, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम, जितना कम उतना बेटर। इसलिए दिस इज द सिंबल फॉर, दिस इज द सिंबल फॉर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक में आप पाओगे कि ये अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रहेगा तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कभी कांस्टेंट नहीं होगा। टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ड्रॉप डाउन होते जाएगा जैसे जैसे उसका करंट बढ़ जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 0। प्रैक्टिकल का शुड बी मिनिमम, जितना बढ़ेगा उतना आउटपुट वोल्टेज कम आएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है कांस्टेंट, इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट नहीं होती है। जस्ट समरी पॉइंट ऑफ व्यू विल मेक वन टेबल अबाउट आइडियल एंड प्रैक्टिकल। अगर एक साइड में रखूंगा आइडियल
और एक साइड रखूंगा मैं प्रैक्टिकल। तो व्हाट इज अबाउट आइडियल? आइडियल में इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं रहेगा, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स? नो रेजिस्टेंस। बट व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल को रेजिस्टेंस आएगा, बट ये रेजिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए कि आइडियल का इंटरनल रेजिस्टेंस आरआई कितना रहेगा गारंटेड? इट शुड बी जीरो, आइडियली नॉट पॉसिबल बट इट इज। एंड आरआई का रेजिस्टेंस होना चाहिए वेरी स्मॉल। कितना होना चाहिए? वेरी स्मॉल। एंड जब आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक हमेशा रहेगा कांस्टेंट, नो चेंज। और इस केस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपकी ऐसी रहेगी कि ये ड्रूपिंग नेचर रहेगी, मतलब इसका वोल्टेज हमेशा ड्रॉप डाउन होते रहेगा जैसे जैसे आपका करंट बढ़ जाएगा। सो इट इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो मुझे बता दो, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा? चांसेस बहुत कम है। अगर जिस दिन आइडियल वोल्टेज सोर्स का इनोवेशन हो जाएगा, इट इज द बेस्ट रिसर्च एरिया। You can design the battery which consists zero resistance, then it is very best. But still, it is not possible. That's why every battery source have consists some minimum resistance, and that is always connected in series. Why series? That I'll explain. And that resistance होना चाहिए minimum. ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल के साथ बता दिया कि ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। इसीलिए ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ नेचर ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अभी आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि सर ये रेजिस्टेंस तो आपने सीरीज में कनेक्ट किया, पैरेलल में क्यों नहीं कनेक्ट किया? वो भी हम चेक करते हैं एक बेसिक के जरिए कि रेजिस्टेंस का और वोल्टेज सोर्स का नाता क्या होता है सीरीज में और पैरेलल में, और उसी वजह से वोल्टेज सोर्स सीरीज में सीरीज रेजिस्टेंस क्यों आता है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि सपोज वोल्टेज सोर्स, ये भी कभी कभी आपको एग्जांपल में काम आएगा, वोल्टेज सोर्स एंड रेजिस्टेंस, voltage source and resistance in parallel। करके देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स का और रेजिस्टेंस का नेचर क्या है पैरेलल में। तो पहला एग्जांपल जरा ध्यान देना, अगर मैंने बैटरी सोर्स लिया 10 वोल्ट की और उसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 1 ओम का, और आपको मैं सवाल पूछ रहा हूं कि यहां कितना वोल्टेज आएगा, तो बट ऑब्वियस आप बोलोगे सर 10 डिवाइडेड बाय 1, करंट जाएगा 5 और यहां वोल्टेज आ जाएगा 10। वेरी गुड, इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 10। ये मेरा पहला एग्जांपल हो गया। अभी बैठे बैठे कुछ काम नहीं तो थोड़ा सा हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं 10। कितना कनेक्ट कर रहा हूं? 10। अभी बताओ मुझे ये 10 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा? 10 वोल्टेज के अक्रॉस 10 डिवाइडेड बाय 10, करंट जाएगा 1 एम्पियर एंड 1 into 10, ये वोल्टेज वापस हो गया 10। जब रेजिस्टेंस था 1 तो भी वोल्टेज आ गया 10, रेजिस्टेंस बन गया 10 तो भी वोल्टेज आ गया 10। एंड लास्टली अगर मैं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बना दूं, 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मैं बना दूं 100, रेजिस्टेंस की वैल्यू बना दूं 100, तो भी अगर आपको सवाल पूछूंगा कि यहाँ वोल्टेज कितना आएगा, सोचो जरा, 10 डिवाइडेड बाय 100, करंट कितना जाएगा? 0.1। वेरी गुड। एंड अगेन ये 0.1 मल्टीप्लाई बाय, नॉट 0.1 या 0.1 इंटू 100 अगर करेंगे तो वापस इसका वोल्टेज भी हो जाएगा 10। इसका मतलब इस बैटरी के सामने मैंने 1 कनेक्ट किया तो भी 10 आ गया, 10 कनेक्ट कर दिया तो भी 10 आ गया, 10 100 कनेक्ट कर दिया 10 आ गया। इसका मतलब पैरेलल में बैटरी सोर्स के जितना भी कोई रेजिस्टेंस रहेगा वो मीनिंगलेस है। मतलब मैंने 1 कनेक्ट करो तो भी आउटपुट सेम आता है, 10 कनेक्ट करो तो भी आउटपुट सेम आता है, 100 करो, 1000 करो, 10,000 करो या निकाल भी दे दो तो भी बैटरी का वोल्टेज सेम आता है। इससे क्या पता चलता है? इलेक्ट्रिकल में एक टर्म होती है रिडोनेंट। रिडोनेंट का मतलब जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो और आप क्लासरूम में अटेंटिव नहीं हो तो उस क्लासरूम के हिसाब से आपको क्या कहा जाएगा? यू आर रिडोनेंट अबाउट द क्लास, मतलब आप क्लास में बैठे हो नहीं बैठे हो फर्क नहीं पड़ता। सेम थिंग विल बी हैपन हियर। वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस का पैरेलल में नाता ऐसा है तो भी वही वोल्टेज आएगा, कितना भी है तो भी वोल्टेज आएगा, नहीं है तो भी वोल्टेज उतना ही रहेगा। इसका मतलब एक बेसिक कंसेप्ट जिंदगी भर के लिए याद रखना इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज when a battery and resistance both are connected in parallel, और किसी ने आपको पूछा कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, तो इसका इक्विवेलेंट हमेशा रहेगा वोल्टेज सोर्स ओनली। व्हाई? बिकॉज व्हाटएवर रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक बोलने जा रहा हूं, व्हाटएवर रेजिस्टेंस कनेक्टेड, व्हाटएवर का मतलब एनी वैल्यू, व्हाटएवर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद वोल्टेज सोर्स इज मीनिंगलेस। इसीलिए वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, नॉट इन पैरेलल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट अबाउट द वोल्टेज सोर्स।
So once again I repeat, short revision, voltage source, amount of work done to bring unit positive charge from one point to another point. In that definition you already clear in 12th standard. Voltage source is classified into two parts, ideal and practical. I am talking about DC. There are many classification, dependent, independent, that we are not supposed to go because not the scope of our this video. Our video is focused on ideal and practical voltage source. What about ideal voltage source? Resistance should be zero. क्यों zero चाहिए? पूरा का पूरा वोल्टेज मुझे मिलना चाहिए. मुझे मतलब मेरे एप्लीकेशन. लेकिन आइडियल ऐसा होगा क्या? सॉरी, प्रैक्टिकल ऐसा होगा क्या? नहीं. कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा. आएगा तो भी कितना होना चाहिए? मिनिमम. जितना मिनिमम उतना आउटपुट अच्छा मिलेगा. रेजिस्टेंस जो आइडियल का रहेगा जीरो, प्रैक्टिकल का रहेगा मिनिमम. कहाँ कनेक्ट किया जाता है? सीरीज में. क्यों सीरीज में? क्योंकि पैरेलल में बैटरी के जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा. दैट्स व्हाई ऑल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन series. So this is the most important information you should know before you start the theorems or electrical engineering. Now another important concept related to voltage source, that is sometime in side application or other we used to connect voltage sources either in series or parallel. So what will be the effect? So first basic we will cover, that is called as voltage source. Voltage sources are in series. Voltage sources are in series. So for example, suppose I connect 10 volt voltage source and 5 volt voltage source in series. Same here, if I take 10 volt voltage source and 5 volt voltage source, but I change the polarity, negative positive, and I am interested to get what will be the resultant one. What will be the resultant voltage source? What is your judgment please? I have connected two voltage source in series. पहला है 10, दूसरा है 5. पहला है 10, दूसरा है 5. क्या आपका आउटकम रहेगा? तो देखो, वोल्टेज सोर्सेस आर ऑलवेज एडिटिव. ये वर्ड याद रखने का, वोल्टेज सोर्सेस आर ऑलवेज एडिटिव. आप पूछोगे क्यों सर? बेसिक लॉ है केवीएल, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज एट अ क्लोज पाथ, मतलब इन सीरीज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब वोल्टेज सोर्सेस आर एडिटिव. अलजेब्रिक सम का मतलब एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यहाँ देखो पोलैरिटी जरा, पहले केस में पॉजिटिव निगेटिव पोलैरिटी सेम है. इसका मतलब इसका रिजल्टेंट बन जाएगा 15 वोल्ट, मतलब ये हो गया एडिशन. तो व्हाट इज द रूल फॉर एडिशन? देयर पोलैरिटी मस्ट बी सेम, पॉजिटिव निगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव निगेटिव व्हेन यू ट्रैवल. लेकिन अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव एंड देन निगेटिव पॉजिटिव, मतलब पोलैरिटी डिफर. पोलैरिटी जब डिफर होगी तो क्या लोकेशन, क्या उसका बेसिक रहेगा? इट इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम हायर माइनस लोअर. हायर माइनस लोअर मतलब 10 माइनस 5 इज अ 5. और पोलैरिटी किसकी देनी है? डोमिनेट वन की. जिसकी भैंस उसकी लाठी. अगर आप 10 माइनस 5 कर रहे तो रिजल्टेंट बैटरी को पोलैरिटी आएगी हायर वन की. तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन का रूल. किसका रूल? सब्सट्रैक्शन का रूल. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक. जब आपको वोल्टेज बढ़ाना है या वोल्टेज कम करना है by multiple battery combination, then you can do the series connection. सीरीज में अगर पोलैरिटी सेम करते जाओगे तो you can increase the total voltage, and अगर पोलैरिटी डीपर करते जाओगे तो आपको लोअर वोल्टेज मिल जाएगा. तो what is the basic? We can add or we can subtract series connected voltage sources. But why? Because voltage sources are always additive or subtractive in series by KVL. KVL means Kirchhoff's voltage law. So this is the most important point about voltage sources are in series. Now आपके मन में सवाल आएगा कि सर voltage source parallel में क्या हो जाएगा? चेक करते हैं. तो नेक्स्ट बेसिक रहेगा voltage sources are in parallel. Voltage sources are in parallel. Voltage sources are in parallel. चलो करके देखते हैं. तो सपोज मैंने एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया और दूसरा 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया. And if I connect them in parallel, and I'm interested to see what will be the resultant one. तो लगाओ बोली, आप क्या कहोगे? 10, 5, 15. बहुत सारे बुक में भी कभी कभी गलत प्रेडिक्शन होता है कि ये 10 + 5 15 या 1/10 1/5. ऐसा कुछ नहीं होता. बिकॉज एक रूल हमेशा जिंदगी में याद रखने का कि सीरीज में करंट इलेक्ट्रिकल में कांस्टेंट रहता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है. वोल्टेज पैरेलल का कभी चेंज नहीं होगा. अगर वोल्टेज पैरेलल का चेंज नहीं होगा और आपने गलती से दो बैटरी अनइक्वल एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट कर दी तो इस बेचारे की कैपेसिटी है 5 वोल्ट. इट इज कम अक्रॉस अ हायर वोल्टेज एंड इट श्योरली गेट डैमेज. अगर आप 5 चपाती खाते हैं और गलती से आपको 25 चपाती खाने को दिया तो जो हालत आपका होगा
ये बैटरी का होगा। अगर भरोसा नहीं तो प्रैक्टिकल में भी आप करके देखते हैं कि पावर सप्लाई दो ले लो, एक 10 का और एक 5 का, और उनको पैरेलल में कनेक्ट करके देखो, 5 वाला वोल्टेज सोर्स थोड़ी देर के बाद शॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये भी आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिक क्या आता है कि पैरेलल में हम वोल्टेज सोर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। किसी ने पूछा क्यों? बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा और सीरीज में हमेशा करंट कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन रहेगा तो इट विल नॉट सर्वाइव एंड दैट्स व्हाई रिजल्टेंट रिमेन 10 वोल्ट। इसका मतलब वी कैनॉट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट व्हाट parallel connected voltage sources. Parallel connected voltage sources always remain constant. Parallel voltage always remain constant. So that is about entire voltage source. What is the ideal voltage source? Today's lecture we cover what is a practical voltage source. Practical voltage source का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, वो सीरीज में क्यों रहता है, क्योंकि पैरेलल में उसका इफेक्ट नहीं आता है। ये हो गया आइडियल और प्रैक्टिकल। और उसके बाद हमने कनेक्शन के बारे में भी बात किया कि वोल्टेज सोर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मिल सकती है, लेकिन अगर हम पैरेलल में अनइक्वल कनेक्ट करें, अगर आप बोलोगे इक्वल कनेक्ट करें तो इक्वल रिमेन सेम। इसलिए पैरेलल में वोल्टेज सोर्स ज्यादा कुछ फायदा नहीं देता है। अगर आप कनेक्ट भी करोगे तो डोमिनेट क्या रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट बेसिक ऑलवेज रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट सोर्स। Like voltage source, your current source also get classified into two part. First is रहेगा ideal and second one is रहेगा practical. Ideal and practical. Like voltage source, current source भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा आइडियल, दूसरा होगा प्रैक्टिकल। अभी जब आइडियल की बात करोगे हमेशा याद रखो वोल्टेज एंड करंट आर ड्यूअल टू ईच अदर, मतलब एग्जैक्टली रिवर्स बिहेव करेंगे। तो जब मैं करंट सोर्स को आइडियली डिफाइन करूंगा तो ये होगा मेरा करंट सोर्स आइडियल, और उसका पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगा। वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस आया था सीरीज में, इसका रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, और वो रेजिस्टेंस होगा आपका इनफाइनाइट। कितना होगा? इनफाइनाइट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसका एडवांटेज देखो क्या रहेगा कि अगर आपके पास जितना भी करंट रहेगा, सपोज मैंने अगर 10 एम्पियर करंट लिया, ये मेरा 10 एम्पियर आइडियल करंट सोर्स लिया, और इसके पैरेलल में अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर रहेगा, और फिर से मैंने इसको एक एप्लीकेशन के अक्रॉस कनेक्ट किया 1 ओम, तो इसका एडवांटेज ये हो जाएगा कि पूरा का पूरा 10 एम्पियर जो करंट है, ये 10 एम्पियर करंट यहां से पास होगा पूरा का पूरा, और यहां से आपका करंट हो जाएगा 0। इसलिए पूरा का पूरा बैटरी करंट खुद न लेते हुए लोड को सप्लाई करेगी। इसलिए आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखा जाता है या होता है। और इसलिए हमेशा ये आर इंफिनिटी ना दिखाते वक्त हम हमेशा आइडियल करंट सोर्स, क्योंकि इंफिनिटी मतलब मीनिंगलेस है, तो इसको दिखाते वक्त इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन शो आइडियल करंट सोर्स लाइक दिस। और जब आपका आइडियल करंट सोर्स बन जाएगा तो ये आइडियल करंट सोर्स जिंदगी भर आपको कांस्टेंट करंट देता रहेगा। तो दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल करंट सोर्स। मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज सोर्स के एग्जैक्टली अपोजिट कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। और अगर वो इनफाइनाइट है तो एक एग्जांपल मैंने समझा दिया कि पूरा का पूरा करंट लोड के अक्रॉस चला जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कंजम्पशन नहीं होगा। इसलिए कभी कभी ऐसा भी दिखाया जाता है, और या सिंगल, क्योंकि पैरेलल में इनफाइनाइट मतलब नो नथिंग। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और ये रहेगी वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं जब आप देखेंगे। और आपके मन में और एक सवाल रहेगा कि करंट सोर्स होता क्या है? करंट सोर्स जनरली एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स ही रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे बीजेटी, एपीटी, मॉसफेट, दे आर द करंट सोर्स, दे जनरेट प्रॉपर्टी लाइक दिस। बट इन इलेक्ट्रिकल करंट सोर्स को हम जनरली देखते नहीं है, बिकॉज करंट सोर्स इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स। जस्ट V डिवाइडेड बाय R किया तो जो I आता है उसको आप चाहे तो करंट सोर्स करके दिखा सकते हैं। प्रैक्टिकल की जब हम करंट सोर्स की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स सेम रहेगा, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा वो इनफाइनाइट ना होते हुए वेरी हाई रहेगा। और जब वेरी हाई रहेगा तो थोड़ा बहुत करंट ही कंज्यूम करेगा, और इसकी वजह से आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो है करंट का वो कांस्टेंट ना रहते हुए थोड़ा सा ड्रूपिंग नेचर में आ जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट, इसलिए करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रैक्टिकल में पैरेलल में ही रेजिस्टेंस रहेगा, व्हाई दैट आई विल एक्सप्लेन। बट अनदर पॉइंट दैट
ये थोड़ा बहुत करंट लेगा, इसलिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक इसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी. दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज, सॉरी करंट सोर्स. तो वंस अगेन आई रिपीट, अगर इसका हम कंपैरिजन छोटा सा करेंगे आइडियल और प्रैक्टिकल का, तो ये हो गया मेरा आइडियल, ये रहेगा मेरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स. तो आइडियल करंट सोर्स में क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स जो आपका है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहेगा, जिसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज ए इनफाइनाइट. इसका मतलब इसका आरआई हो गया आपका इनफाइनाइट. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट रहेगा, लेकिन जब पैरेलल में ये कनेक्ट रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस हमें दिखाना पड़ेगा, और ये रेजिस्टेंस होता है इंस्टेड ऑफ इंफिनिटी इट इज वेरी हाई. ये रहेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहेगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल करंट सोर्स. और इसका आरआई जो रहेगा वो इनफाइनाइट ना रहते हुए यू कैन से वेरी लार्ज और वेरी हाई. ये मेजर डिफरेंस रहेगा. और आइडियल करंट सोर्स अगर आप देख रहे हैं तो आइडियल करंट सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वी एंड आई कांस्टेंट लाइक दिस. बट प्रैक्टिकल में हमेशा देखा गया है कि ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये थोड़ा ड्रूपिंग इन नेचर चला जाएगा. सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स. एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसीजर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट सोर्स. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड करंट सोर्स. ये एनालिसिस देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, क्या होगा अगर मैं करंट सोर्स का रेजिस्टेंस सीरीज में डाल दूं. चलो देखते हैं एनालिसिस करके. तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज. तो ये मेरा है करंट सोर्स, सपोज 10 एम्पियर का है, और इसके सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 1 ओम का. अभी और आपको सवाल पूछ रहा हूं मैं कि इसमें से कितना करंट पास होगा. मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सीरीज करंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और अगर आपका सीरीज करंट कांस्टेंट रहता है तो पूरा का पूरा 10 एम्पियर यहां से चला जाएगा, तो यहां से करंट हो गया 10. और एक एग्जांपल लेते हैं, यही रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 बना देते हैं, 10 ओम, और ये सेम करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा 10 एम्पियर. और वापस मैं एनालिसिस करना चाहूंगा कि यहाँ सर्किट से कितना करंट पास होगा. सीरीज में हमेशा करंट कांस्टेंट रहता है, इसकी वजह से यहां से भी करंट जाएगा 10. और एक एग्जांपल में ये अगर मैं 1000 कर देता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, और करंट की वैल्यू सेम है 10 एम्पियर, और इसको मैं कनेक्ट करता हूं लाइक दिस, तो यहां से भी करंट आपका पास हो जाएगा 10 एम्पियर. सो 10 10 10 मतलब रेजिस्टेंस 1 था तो भी 10, रेजिस्टेंस 10 था तो भी 10, रेजिस्टेंस 1000 था तो भी 10. इसका मतलब मैंने 1 कनेक्ट किया तो भी 10, 10 ओम कनेक्ट किया तो भी 10, 1000 कनेक्ट किया तो भी 10. इसका मतलब मैं करंट सोर्स के सीरीज में कितना भी रेजिस्टेंस डालूंगा करंट सोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए बीडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू अनदर इंपॉर्टेंट बेसिक आपको हमेशा याद रखना है सर्किट रिडक्शन में. अगर आप ऐसी सिचुएशन पे आ गए कि एक करंट सोर्स है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है, तो unnecessary carrying this resistance you can make it redundant and you can make only the current source. तो क्या बेसिक इस एनालिसिस से हमें मिलता है कि whatever resistance connected in series with current source is redundant, और उसके पहले मैंने क्या कहा था, whatever resistance connected in parallel with voltage source is redundant. इसीलिए उसके ऊपर और एक important point, generally we show resistance of current source in parallel not in series. So that is another important point related to the current source, why resistance connected in parallel. और अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो you can remove it because it is a redundant. redundant मतलब meaningless है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So it is another important basic you required about current source. और उसके बाद कभी कभी सर्किट डिडक्शन में और एक पार्ट आ जाता है कि क्या होगा अगर करंट सोर्स को हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. तो चलो देखते हैं अनदर बेसिक आपका है करंट सोर्स इन सीरीज. अगर मैंने 10 एम्पियर का करंट सोर्स और 5 एम्पियर का करंट सोर्स अगर सीरीज में कनेक्ट किया 10 and 5, और मैं इंटरेस्टेड हूं कि टू सी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वन, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर 10 + 5 नहीं. सीरीज में हमेशा याद रखने का कि सीरीज में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इट नेवर गोइंग टू चेंज. इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 10 और 5 को कनेक्ट करूंगा तो सीरीज में डोमिनेट करंट ही बचेगा 5 एम्पियर करंट.
थोड़ी देर के बाद डैमेज होने की चांसेस है, इसलिए रिजल्टेंट करंट रहेगा 10 एम्पियर। सीरीज में क्या ऐड होगा? वोल्टेज। पैरेलल में क्या ऐड होगा? अभी से हिंट मिल रही है आपको, करंट। तो सीरीज में करंट ऐड नहीं होगा। तो ये एग्जांपल से आपको क्या बेसिक मिला? वी कैन नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट सीरीज कनेक्टेड करंट सोर्स। और अगर आप एग्जांपल की तरफ, थ्योरेटिकल कांसेप्ट की तरफ आ गए कि दो करंट सोर्स सीरीज में है, you can read down another one and make dominate one as a resultant। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा करंट सोर्स का सीरीज में। उसी हिसाब से अगर मैं सोचूंगा कि करंट सोर्स पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो जब मैं बात करूंगा कि करंट सोर्स सोर्सेस इन पैरेलल, चलो फिर मैं दो करंट सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। एक है 10 एम्पियर, एक है 5 एम्पियर। एक एग्जांपल में, सॉरी, एक है आपका 10 एम्पियर, एक है 5 एम्पियर। And now I am interested to see what is the resultant one. Similarly, opposite side अगर मैं ये 10 एम्पियर लूं, सेम, लेकिन एक की डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, 5 एम्पियर की, 5 एम्पियर को कर रहा हूं डाउनवर्ड, और उसको अगर मैं रिजल्टेंट में दिखा रहा हूं, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वन? तो 10 एंड 5, अगर इसका एनालिसिस अगर आप देखेंगे, तो यहां से करंट जा रहा है 10 एम्पियर, यहां से करंट जा रहा है 5 एम्पियर, और रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो यहां से करंट हो जाएगा आपका 15 एम्पियर। 10 plus 5, why? Because at this junction we can add, और ये अधिकार हमें किसने दिया? KCL। क्या कहता है KCL? Algebraic sum of all the current at a node or junction equals to 0। मतलब नोड को आने वाले करंट हम ऐड कर सकते हैं। तो 10 plus 5 यहाँ हो जाएगा 15, तो इसका रिजल्टेंट हो गया 15, मतलब we can do addition। तो what is the rule for addition? Direction should be the same। एंड यहां से अगर हम देखेंगे तो ये है आपका 10 एम्पियर, ये है आपका 5 एम्पियर, और ये 10 माइनस 5 करेंगे तो रिजल्टेंट चला जाएगा 5 एम्पियर। डायरेक्शन रहेगी जो डोमिनेट है उसका, तो ये हो गया आपका 5 एम्पियर इज द रिजल्टेंट। मतलब यहाँ आपने क्या कर दिया? आपने एडिशन कर दिया, और यहाँ आपने क्या कर दिया? सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब वी कैन ऐड और वी कैन सब्सट्रैक्ट parallel connected voltage sources by application of KCL। Addition if direction is same, subtraction if direction differ। And what is the rule for subtraction? Higher minus lower, direction of higher। So that is another basic. Sometime you require to simplify the circuit, voltage source are in parallel or voltage sources current sources are in parallel। तो क्या क्या बेसिक देखा हमने? कि सबसे पहला बेसिक देखा कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। उसके बाद करंट सोर्स का रेजिस्टेंस जो इंटरनल हम दिखाते हैं वो पैरेलल में क्यों दिखाते हैं, सीरीज में क्यों नहीं। तो हमने ये जाना कि सीरीज में हम कितना भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करो उसका वैल्यू कुछ नहीं बनता है, मीनिंगलेस हो जाता है, इसलिए हम करंट सोर्स का रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाते हैं। द लास्ट बेसिक रिलेटेड टू करंट सोर्स, वी कैन ऐड और वी कैन सब्सट्रैक्ट पैरेलल कनेक्टेड करंट सोर्सेस, बिकॉज पैरेलल में केसीएल आपको सपोर्ट करता है एडिशन के लिए व्हेन डायरेक्शन इज सेम, एंड सब्सट्रैक्शन के लिए जब डायरेक्शन डिफर। लेकिन सीरीज में हम करंट सोर्सेस को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। नो बेसिक बिहाइंड दिस। और उसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा? डोमिनेट जो है उसको हम सिग्निफाई दिखा सकते हैं। सो दैट इज अबाउट करंट सोर्स एंड वोल्टेज।